अस्सलाम वालेकुम। आज हैं हमारे साथ इंटरनेशनल स्टडी सर्विस के डायरेक्टर एंड सीईओ वन एंड ओनली असद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असद आप? थैंक यू वेरी मच जी, आई एम फाइन। असद, आप हमारी ऑडियंस को बताएं अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, क्या मोटिव है और क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? Madam, it's a international study services and we are recruitment services we are providing in Australia, in UK, in USA, in Canada, and in Europe, and also in China. We are also processing the applications for fully funded scholarships, like in the UK. We have Javelin scholarships, and we are processing scholarship applications for the graduate students and who are performing outstanding in their academics. We are processing their applications, and we are also processing the applications for Australian Award Scholarship. RTP program is a Australian research training program in which students can apply for the master's and PhD program, and they are providing fully funded scholarship to the brilliant students. And we are also processing the application for China Scholarship Council applications, in which students can get the fully funded scholarship from Chinese government, in which all the facilities like their education, their living expenses, and they're also providing the stipends to the brilliant students as well. अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे कहा कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, कितने परसेंटेज होनी चाहिए मार्क्स की उनके? लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो देखिए, जिन बच्चों के ग्रेड्स अच्छे हैं, सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स की को करिकुलर एक्टिविटीज है, यूनिवर्सिटी में उनकी पार्टिसिपेशन है, इसके अलावा वो सोशली कितने एक्टिव हैं, उनके आइल्स में ग्रेड कितने हैं, थ्रू आउट देयर एजुकेशन वो कितना आउट परफॉर्म करते रहे, ये सब चीज़ें जो है वो काउंट करते हैं। और रिसर्च में अगर आप देखें, अगर किसी मास्टर का रिसर्च में या पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा काउंट होती है उनकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन, तो उन्हें कितने रिसर्च आर्टिकल्स जो इंटरनेशनली पब्लिश करवाए हैं इन ऑल द कंट्रीज, जितने भी ऑस्ट्रेलिया ये वो, और जो चाइना का आप बता रहे थे कि वो जो ऑफर करते हैं, चाइना में अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं भी हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन आपके ग्रेड्स एटलीस्ट पीएचडी के लिए एटलीस्ट 3.0 सीजीपीए मिनिमम रिक्वायर्ड है, व्हिच इज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो है वो पीएचडी करने के लिए मिनिमम जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है 3.0 है। और लेकिन अगर कम भी हो, चाइना में ऐसी कंट्री के अगर कम भी आपके ग्रेड्स हैं 2.5 या 2.7 तक है, तो भी वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। और चाइना के हवाले से मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि हमारी इस कौम के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों में खास तौर पर, या इस रीजन में आप कह लें कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और क्योंकि चाइना में आपको जो है फ्री एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे उन्होंने प्लेस किया हुआ है तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसको जो है और या बाकी भी ग्रेजुएशन मास्टर्स ऑल लेवल्स। अच्छा, ऑल लेवल्स, अच्छा, अवेलेबल इन अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एज वेल। So there are benefits. There are categories of the benefits. Like if you are applying for the PhD program, they are providing 4 types of benefits. One is the 100% tuition fee for the entire 4 years. Second, they are providing free accommodation, and they are providing stipend, which is 2,500 RMB to 3,500 RMB, which is almost 1,50,000 per month stipend provided by the Australian government to the PhD bear the expenses, remaining expenses. And also they are covering their insurance, their medical insurance is also covered in this scholarship. Oh, if a student need any medical attention, so they can avail the insurance. Similar scholarship is available for the master students as well. There is slight difference in the undergraduate level. At the undergraduate level, students can easily get 100% tuition fee scholarship and accommodation is free. If they have very good grades like 80%, 90% marks in their intermediate and bachelor, then he can also get this stipend over from there. Oh, that's wonderful. तो मेरा ख्याल है कि जितना मुझे नॉलेज है, ये लगता है हमारी पाकिस्तानी जो कौम है उसको इतना नहीं स्टूडेंट्स को पता है इस चीज के बारे में, चाइना के इन स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्त से वो ये बताना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जो बच्चे पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसका मेरिट आ जाता है तो आई प्रेफर कि वो पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वही बच्चा उसका मेरिट नहीं आ रहा और उसको मजबूरन किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना पड़ रहा है, तो उससे बहुत बेहतर है कि चाइना की गवर्नमेंट की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर वो अप्लाई करे। जिस भी बच्चे के 60% मार्क्स हैं, ही कैन इजीली गेट द स्कॉलरशिप। 100% ट्यूशन फीस उसको ऑफ होगी और 100% उसको अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी मिलेगी।
60% marks के बाद. That's very nice. So, and all the fields are available except MBBS. All other fields like engineering, all fields in Law, law, business. IT, business, economics, each and every faculty is available in these scholarships, and there are a number of scholarships available in China. Every region is offering their own scholarship, like Beijing government scholarship, Shanghai government scholarship, like China Scholarship Council is also over there to provide the scholarships to the international students. So Pakistani students should avail this opportunity, and rather than studying in private sector universities, I highly recommend go to the China, because China is an economic superpower at the moment, and we should learn from there. जी, और इतना अगर वो इतना आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, आपकी ट्यूशन फी 100% है, अकोमोडेशन है, इवन टॉप अप कुछ प्रोग्राम्स के लिए ऊपर से स्टाइपेंड भी आपको दिए जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 100 मोर देन 100,000 रुपीज हैं पाकिस्तानी, उससे ज्यादा पर मंथ, तो आपको अवेल करना चाहिए। और इसको अवेल करने का क्या तरीका है? दे कैन कॉन्टेक्ट यू एनीवन if if they want to avail this opportunity. There are two intakes in a year. One is August September intake, and the second is March April intake. So students can apply well before time. They have to apply right after their result, like intermediate result आने वाला है। इंटर के रिजल्ट के फौरन बाद उनको जो अप्रैल इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो अप्रैल इंटेक में जरा लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो भी बच्चा चाहना चाह रहा है मेडिकल प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग में, IT में, there are options still available for the March April intake. But if he is interested any other program which is not available in April, so the August September intake is available. It's a major intake, and the last date of application is almost 15th of April. तो इसमें प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग जाता है, और इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट को वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको अपने लिविंग एक्सपेंसेस इनिशियली शो करने के लिए कोई 10 से 15 लाख की पेंशन में रिक्वायर्ड होती है, which is also required by the university, not required by the embassy as well. And इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे वीजा फीस भी जो है वो जीरो है। चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट से 1 रुपया भी वीजा फीस की मद में नहीं लेती है। और जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें ये भी बेनिफिट होता है, जिसमें आपके अलाउंसेस भी कवर्ड हैं, अकोमोडेशन कवर्ड है, आपकी जो है वो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। जिस जगह पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, वहीं पे सिर्फ आपको अपने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए शो करना है एम्बेसी को, वो 10 से 15 लाख की बैंक मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन बच्चे के मैट्रिकुलेशन, अगर ग्रेजुएट लेवल इंटरमीडिएट लेवल पे है बच्चा और ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहा है, तो उसको मैट्रिक की सनद, इंटर की सनद, इंटर के रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, उसका रेज़्यूमे, उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन उसको रिक्वायर्ड है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से वो अपना मेडिकल रिपोर्ट्स सबमिट करवाए, साथ उसका एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। नथिंग एल्स। सेम लाइक जो वीजा की एक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, सेम लाइक दैट। सही। और बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे और PhD लेवल पे उसमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। प्रीवियसली जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स के ऊपर वो लोग एडमिशन दे रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने IELTS, TOEFL और PT ये टेस्ट वगैरह आप दे के वो अप्लाई कर सकते हैं। Duolingo इज आल्सो एक्सेप्टेबल इन चाइना। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द चाइनीज यूनिवर्सिटीज वो बच्चों से डिमांड कर रहे हैं कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दें। IELTS हो गया, Duolingo हो सकता है, TOEFL हो सकता है। दैट्स वंडरफुल। और मेरे लिए भी ये बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है कि चाइना इतना ऑफर कर रही है और इतनी ऑप्शंस हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेजेस पे। हमारे स्टूडेंट्स को उसको जरूर अवेल करना चाहिए जो करना चाहें, और इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी एक मिलेगा इसमें। सिर्फ ये नहीं है कि आपको, और विदाउट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस जो गवर्नमेंट है या लोकल यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको शेयर कर रही हैं। दैट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। और आप लोग इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मैं असद अब्बास साहब की डिटेल्स आपके साथ वीडियो में शेयर हो जाएंगे, बल्कि हो रही होंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप इसको देखेंगे और इनसे कांटेक्ट करें, मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। असद, मुझे ये बताएं, इसके अलावा चाइना के अलावा कोई और कंट्री जो फंडेड हो या कंट्रीब्यूट करती हो कुछ? जी एग्जैक्टली। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनके आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, जिन्होंने अपनी रिसर्च के ऊपर काम किया, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो लोग ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर आ रही हैं, उसके लिए उनकी एप्लीकेशन जो है वो मार्च अप्रैल में ओपन हो जाती हैं। तो इसमें लाजमी लोग अप्लाई करें जिनके CGPA 3.5 से अबव है, दे शुड अप्लाई। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप्स के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें PhD और मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऑल फील्ड्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें ट्यूशन फीस भी कवर्ड है और
इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आप जो है वो ओवरसीज सेल्फ कवर, आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी कवर्ड है, और जो है वो मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी प्रोग्राम में आप अपने डिपेंडेंट्स को भी ले जा सकते हैं, उनको वहाँ पे फुल टाइम वर्किंग अलाउ होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे पीएचडी के लिए जाते हैं या एमफिल के लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी वर्क लिमिट नहीं है, देयर इज नो वर्क लिमिट ऑन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अपने किसी ग्रेड्स में कम लगते हैं, तो सीजीपी 3 से कम है, 3 तक एटलीस्ट 3 तक है, लेकिन उसको कहीं स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में सबसे जो बेहतरीन जगह है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में पीएचडी की फीस ही 5,500 से 6,000 न्यूजीलैंड डॉलर, विच इज ओनली 1 मिलियन। 1 मिलियन रुपीज में आप इजीली न्यूजीलैंड की 8 से 10 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, उनमें आप अप्लाई करें, और टोटल फीस 5,500 से 6,000 न्यूजीलैंड डॉलर है, और वो भी वीजा अप्रूवल के बाद आपने पे करना है। यू जस्ट नीड अ वेरी गुड रिसर्च प्रपोजल, आपको रिक्वायर्ड है प्रॉपर्ली गैप आइडेंटिफाई करके आप इसमें प्लेजर की रिपोर्ट अपनी ऐड करें, और उसके साथ अपना रिसर्च प्रपोजल सबसे पहले हमें प्रोवाइड करें। हम आपको सुपरवाइजर फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है इसके अंदर सुपरवाइजर की एलोकेशन। वंस आपको सुपरवाइजर कोई मिल जाता है और वो आपको रिकमेंड कर देता है, या आपको नॉमिनेशन फॉर्म दे देता है, या आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देता है, तो उसके बाद इजीली आपको किसी भी रिकमेंड लाइक आपने अप्लाई किया हुआ है मैसेज यूनिवर्सिटी में या ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी में इजीली आपको फिर एडमिशन टीम आपको ऑफर ग्रांट कर देती है, और फिर वीजा अप्रूवल पे आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है। तो इट्स वेरी इजी, और यहाँ पे भी आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ ले जा सकते हैं मास्टर पीएचडी प्रोग्राम लेवल पे। मास्टर्स लेवल पे इस तरह से रिकमेंडेड नहीं है, ले जा तो मास्टर्स लेवल पे भी सकते हैं, लेकिन जो है वो पीएचडी लेवल पे है कि अब आप अपने साथ ही अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, और डिपेंडेंट्स को भी फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं। अच्छा, वर्किंग राइट्स है सेम एज ऑस्ट्रेलिया। सही सही। और जो चाइना है उसमें अगर डिपेंडेंट्स हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया? बिल्कुल, उसमें भी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हैं, उसमें कि आपका अगर पहले वीजा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद फिर आपने अपनी अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटीज आपको लेटर प्रोवाइड कर देती हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्किंग राइट्स नहीं है। आप जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो आपको वर्किंग राइट्स नहीं दे सकते। स्टाइपेंड इतना इनफ दे रहे हैं कि आप अपने बाकी के ऊपर के काफी सब कुछ, तो बाकी रेजिडेंस सब कुछ कवर्ड है, जो बाकी के एक्सपेंसेस आप कवर कर सकें। आपने खुद कितनी कंट्रीज में विजिट किया? मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 यूनिवर्सिटी कंट्रीज विजिट की हैं, और मुझे जो है वो पर्सनली तौर पर जो है वो चाइना सबसे ज्यादा जो है वो डेवलप कंट्री लगता है। मैंने यूएसए भी देखा है, मैंने कनाडा भी देखा है, दुबई भी गया हूँ, तुर्की भी गया हूँ, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेवलप मुल्क है और जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है वो चाइना है। ये इसका कोई मैच नहीं है, बाकी पूरी दुनिया उससे 10 साल पीछे है। ये मैच्योरिटी है, मैं आपको बताऊंगा कि जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैंने जिंदगी में पहली दफा ट्रांसपेरेंट मोबाइल चाइना में देखा, आज से 5 साल पहले मैंने किया था, और अभी तक पाकिस्तान में ऐसी कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है। 350 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे ट्रेनें चलती हैं, मैग्नेट ट्रेन है वहाँ पे, एयरपोर्ट्स के ऊपर, ट्रेन स्टेशन के ऊपर रिबोट्स खड़े किए हुए उन्होंने गाइड करने के लिए। तो आप सोचें कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल है। तो ये जो इनका फंडेड प्रोग्राम है ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या और भी हमारे जो इस रीजन में जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सबको वो लोग सपोर्ट करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी भी जो ममालिक इसमें शामिल हैं, जिसमें रशियन स्टेट्स भी हैं। तो उन सब लोगों को वो जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी रहती है। इवन कोई जो यूरोपियन ममालिक से भी पढ़ना जाना चाहता है फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, दे वेलकम। ओके, बड़ा जबरदस्त भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें असद साहब से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम असद, और उम्मीद है कि आप सबको भी काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इससे ज्यादा आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें इससे रिलेटेड तो आप असद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू असद साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।